Hi, welcome back to Vistas IQ, episode 27, and that is on invisible inflation. So let's see how invisible inflation plays a crucial role in our life. So let's see how. So, invisible inflation. Today it's episode 27, right? The basic idea is inflation होता क्या है? Inflation means money by less than before. Here money by less than before. What actually bought from rupees 30? Now inflation means money by less than before. What it means? जो आप पहले खरीदते थे 20 रुपए में 1 kg, ठीक है, वही अब 20 रुपए में either it's 500 ग्राम और 400 ग्राम मिल रहा है, right? So money by less than before. Invisible inflation होता क्या है? It hides the loss of value. It hides the loss of value. It hides the loss of value. Here the prices may stay the same. Prices same रहते हैं, but the actual quantity that is being delivered to you is now less. So that is why inflation here means money buy less than before. The actual quantity क्या है? पहले से कम मिल रही है. What you receive quietly changes. जो आपको पहले मिल रहा था, if suppose आपको पहले 1 kg मिल रहा था, now you are getting 400 ग्राम और 500 ग्राम. So here what you receive is quietly been changed, right? अब सिंपल ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसकी क्या है. नाउ द सिंपल ऑब्जर्वेशन, सेम प्राइस है, सेम ब्रांड है, जैसे रुपीज 20 का, ठीक है, सेम ब्रांड, कोई भी ब्रांड ले लो, XYZ कोई भी हमने ब्रांड ले लिया, सेम पैकेजिंग है, द पैकेजिंग इज ऑल्सो सेम बट डिफरेंट एक्सपीरियंस. पहले हमें लगता था 20 रुपए में 1 kg का कुछ आइटम आ रहा है, नाउ 20 रुपए में नाउ 400 ग्राम और 500 ग्राम. तो जो आपको मिल रहा है ना, वो बिल्कुल धीरे से और बिल्कुल स्लाइटली चेंज हो चुका है. So invisible inflation is actually hiding the loss of value. Begins when value changes but price does not. Price वही रहेगा, that is rupees 20. This is example. But the value changes. ठीक है? The quantity, the material item quantity changes. Right? So this is what is visible. This is invisible inflation. Now the disappearing, who stays the same? अब कहता है disappearing products, who stays the same? क्या चीज सेम रही? प्राइस सेम रहा, ब्रांड नेम से रही, शेल्फ पोजीशन, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है? फॉर एग्जाम्पल अर्लियर द प्रोडक्ट हैज एन एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, तो अभी भी उसकी वही रही, प्राइस सेम रहा, ब्रांड नेम सेम रही. सो दिस इज व्हाट स्टेज द सेम with respect to the product. What changes is the weight, the volume and the number of pieces. For example, rupees 20 में आपको 10 टॉफीज मिल रही थी, राइट? अब वही रुपीज 20 में आपको 5 टॉफीज मिल रही हैं. हियर द नंबर ऑफ पीसेस, द वेट, द वॉल्यूम. वेट मतलब 400 ग्राम, 500 ग्राम. द वॉल्यूम and the number of pieces changes, but price, brand name, shelf position, it remains the same. So real life example से अब हम explain करेंगे इसको क्या होता है एक्चुअली में. जैसे पहले एक 20 रुपए का पैकेट आता था बिस्किट का, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 बिस्किट्स होते थे. अब उसी 20 रुपए के पैकेट के अंदर क्या हुआ? fewer बिस्किट्स हैं. इफ सपोज 7 to 8 बिस्किट्स हैं, राइट? सो fewer बिस्किट्स इन अ पैक. स्मॉलर चॉकलेट बार्स, जो 20 रुपीज में एक चॉकलेट का साइज काफी बड़ा होता था, नाउ उसी चॉकलेट का साइज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. अब शैम्पू की बॉटल, जो पहले 20 रुपीज के शैम्पू, 20 रुपीज 200 रुपीज का शैम्पू आता था, उसके अंदर आपको 1000 मिलीलीटर का उसके अंदर मिलता था, 1 लीटर का. ना अब उसी रुपीज 200 के में आपको मिल रहा है 800 ml ओनली. सो दिस इज व्हाट द वेट, द वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ पीसेस reduces, but the price, the brand and what? Here
remain same is the shelf position, the prices, and the brand. This is shrinkflation. Inflation hidden inside the quantity. क्वांटिटी के अंदर छुपा हुआ है. द इन्फ्लेशन दैट इज हिडन इनसाइड द क्वांटिटी. प्राइस तो वही है लेकिन क्वांटिटी के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है, तो दैट इज श्रिंकफ्लेशन. नाउ when products wear out faster, some items look unchanged but do not last as long. जैसे कि क्यों बोल रहा है when products wear out faster? wear out faster का मतलब है tear and wear, depreciate, right? wear out faster का मतलब होता है जल्दी खराब हो जाने वाले. some items looks unchanged, ठीक है, कुछ आइटम लुक अनचेंज बट डू नॉट लास्ट एज लॉन्ग. अब कुछ आइटम होती हैं जो लगता है कि इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ना इसका साइज छोटा होने वाला है. अब देखो एक शूज है, शूज का प्राइस है रुपीज फॉर एग्जाम्पल 500. किड्स के स्कूल का शूज है, उसका प्राइस है रुपीज 500. अब क्या उसका साइज छोटा हो जाएगा, क्या वो साइज बड़ा हो जाएगा, कर सकते हैं नहीं कर सकते ना. तो वो लगते तो हैं कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ बट जो उसकी लॉन्ग लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट होता है. स्कूल शूज टीयरिंग अर्लियर, ठीक है, इट बिकॉज ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. फोन चार्जर्स फेलिंग क्विकली. पहले फोन चार्जर्स जो 2-2 साल चलते थे अब उनकी लाइफ जो है वो कम हो चुकी है. बैकपैक्स विद वीकर जिपर्स. अब आपने देखा होगा कई बैग्स आते हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग जिप्स होती हैं, बहुत अच्छी स्टिचिंग होती है, बट बिकॉज ऑफ क्वालिटी, द मटेरियल, ठीक है, क्वालिटी मटेरियल, राइट. अब क्या हुआ, चेंज हुआ. किसके ऊपर चेंज हुआ? क्या प्राइस के ऊपर कोई चेंज आया? नहीं. क्या शेल्फ लाइफ के ऊपर कोई चेंज आया? मे बी, ठीक है. और क्या ब्रांड के ऊपर कोई चेंज आया? नो. किसके ऊपर चेंज आया? क्या वॉल्यूम, वेट, इनके ऊपर चेंज आया? नहीं. किसके ऊपर चेंज आया? क्वालिटी एंड मटेरियल के ऊपर. तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जहां पर क्वालिटी अफेक्ट हो रही है. व्हाट इज हैपनिंग? चीप मटेरियल्स, लो ड्यूरेबिलिटी, रिड्यूस लाइफ स्पैन, राइट. बाइंग रिप्लेसमेंट सूनर इंक्रीजेस टोटल स्पेंडिंग विदाउट अ प्राइस राइज, राइट. आपने पहले जो मटेरियल खरीदा, जो आपने शूज पहले खरीदे, आपके जल्दी खराब हुए, फिर दोबारा उसको आपको परचेज करना पड़े. जहां शूज 1 साल चलते थे वहां शूज 6 मंथ्स चलने लग गए हैं. आपकी बाइंग कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट हुआ, ठीक है, राइट. टोटल स्पेंडिंग्स जहां आप साल में एक बार उसके ऊपर खर्चा करते थे अब आप हर 6 महीने में उसके ऊपर खर्चा करते हो विदाउट अ प्राइस राइज, राइट. अब सेम सर्विस फ्यूअर बेनिफिट्स, मेनी सर्विसेज क्वाइटली रिड्यूस व्हाट दे ऑफर. अब आपको ये वाली चीज क्लियर हुई. यहां क्या हुआ था? पहले वेट, वॉल्यूम और इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा था. नाउ मटेरियल, ड्यूरेबिलिटी और लाइफ स्पैन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, जिससे कि आपकी स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है विदाउट अ प्राइस राइज. अब आता है सेम सर्विस है बट फ्यूअर बेनिफिट्स हैं. Many services quietly reduce what they offer, ठीक है. सर्विसेज तो सेम है बट फ्यूअर बेनिफिट्स हैं. जैसे कि एग्जांपल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एड्स एडिड, ठीक है. आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक म्यूजिक एप्लीकेशन देख रही हो, पहले एड्स नहीं आती थी, अब उसमें एड्स आ रही हैं. सर्विसेज तो सेम है बट बेनिफिट्स क्या हो गए? कम हो गए, ठीक है. अब उसमें एड्स रन होने लग गई हैं. जो आप 20 मिनट्स के अंदर एक मूवी को कंप्लीट कर लेते थे, फॉर एग्जांपल सीरीज को कंप्लीट कर लेते थे, अब वही टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया आपका 40 मिनट्स, 35 मिनट्स, बिकॉज ऑफ एड्स. प्रीमियम प्लान रिक्वायर्ड फॉर ओल्ड फीचर्स. अब कोई ओल्ड फीचर्स हैं उसके लिए आपको प्रीमियम परचेज करना पड़ रहा है. अब मोबाइल प्लान के अंदर ही देख लो, सर्विसेज तो सेम है, सर्विसेज वही रहेंगी कंपनीज की, बट वहां पर आपको क्या हुआ? लेस डाटा प्रोवाइड हुआ, स्पीड स्लोवर होगी. जहां 10 Mbps के लिए आपको खर्च करने पड़ते थे अप्रोक्सीमेटली 250-350 रुपीज, अब आपको वहीं पर ही
उसी सेम सर्विस के लिए आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे? ज्यादा। ठीक है, बेनिफिट्स कम है, राइट। अब एयर ट्रेवल के लिए, अब एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर बेसिक सर्विसेज, राइट। एयर ट्रेवल के लिए एक बेसिक सर्विसेज के लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। द प्राइसेस हियर लुक स्टेबल बट एक्सपीरियंस श्रिंक्स। प्राइसेस समवट लुक स्टेबल। अब यहां पर एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई करें तो क्या प्राइसेस सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो हियर प्राइसेस समवट looks stable but here the experience, the overall experience shrinks, कम हो जाता है, right? So this is how the same service but fewer benefits is also affecting our day to day life. पहला प्राइस, दूसरा हमारा वेट, तीसरा हमारा क्वालिटी, चौथा हमारा सर्विसेज। द फी इफेक्ट, इनविजिबल इन्फ्लेशन ऑफन हाइड्स इन स्मॉल चार्जेस। ठीक है, इनविजिबल इन्फ्लेशन कई बार क्या होता है, छोटी छोटी फीस लगाने से भी क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आइटम हमें 200 रुपीज की कॉस्ट कर रही है, उसमें हमने कन्वीनियंस फीस ऐड कर दी, सर्विस चार्जेस ऐड कर दिए, प्रोसेसिंग फीस ऐड कर दी। ओवरऑल द प्रोडक्ट दैट कॉस्ट रुपीज 200 इन ओरिजिनल नाउ कॉस्ट रुपीज 260। सो दिस इज वाई, बिकॉज ऑफ द फी इफेक्ट। हिडन होते हैं, दे आर स्मॉल चार्जेस बट एड्स अ maximum burden on the product price, the actual price the customer pays, जो आप पे करते हो उसके ऊपर। why they matter? क्योंकि वो चेकआउट के टाइम पे ऐड होते हैं, दे आर इजी टू ओवरलुक। आप उसको ओपन करके भी देख सकते हो। आपने कहीं देखा होगा ना, आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करो तो वहां पर एक ऐसे एरो मार्क बना होता है, डाउनवर्ड एरो मार्क, इसको क्लिक करो और आपके पास पूरी उस प्राइस की डिटेल आ जाती है। इंक्रीज द टोटल कॉस्ट, द कॉस्ट दैट द कस्टमर इज supposed to pay. Several small fees can equal a large price increase, right? So fee effect भी मैटर करता है। अब पैकेजिंग ट्रिक्स, पैकेजिंग ऑल्सो हाइड वैल्यू लॉस। हाउ? जैसे कि टॉलर बॉटल्स हैं, बड़ी बड़ी बॉटल्स कर दी बट उसके अंदर कंटेंट क्या है, कम है। थिकर प्लास्टिक वॉल्स, बहुत हैवी प्लास्टिक वॉल्स कर दिया जिससे कि अंदर जो क्वांटिटी है वो कम है। लार्जर बॉक्सेस विद मोर एम्प्टी स्पेसेस, अब आपने देखा होगा कई बार आपको कोई पार्सल कहीं से आपने वो ऑर्डर किया है और वहां से आपको कोई पार्सल मिला है, बॉक्स कितना बड़ा और अंदर आइटम कितनी छोटी, राइट। अपीयरेंस हियर स्टेज द सेम बट क्वांटिटी डज नॉट। वो सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे छलावा जिसको कहते हैं, राइट। हम एक लेमैन टर्म्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनविजिबल इन्फ्लेशन इन स्टूडेंट्स लाइफ, कैसे अफेक्ट हो रहा है स्टूडेंट की लाइफ को? स्टूडेंट एक्सपीरियंस इनविजिबल इन्फ्लेशन डेली, राइट। कैसे? फूड में 20 रुपीज की चाउमीन जो आपको पहले एक फुल प्लेट मिलती थी, वही अब लाइटली थोड़ी मिलती है, राइट। सो दिस इज स्मॉलर कैंटीन पोर्शंस, रिड्यूस्ड मील क्वालिटी। क्वालिटी जहां पर पहले एक 100 रुपीज की थाली आती थी जिसके अंदर सब कुछ होता था, अब उसके अंदर क्वालिटी के ऊपर भी अफेक्ट करा गया है। ट्रांसपोर्टेशन, फियर बेनिफिट्स ऑन पासेस, आपके पास पास बना हुआ है बट फियर बेनिफिट्स हैं। हायर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियां हैं तो वहाँ एसी के चार्जेस, वहाँ अदर वेरियस चार्जेस, राइट। एजुकेशन, एजुकेशनल टूल्स, पे अपग्रेड्स फॉर बेसिक फीचर्स। ठीक है, कोई ऐसे एजुकेशनल टूल्स हैं जहां पर आप फ्री में सभी कंटेंट्स देखते थे, अब वहां पर क्या किया गया है, वहां सब्सक्रिप्शंस लगा दिए गए हैं, राइट। अब लिमिटेड एक्सेस ऑन फ्री वर्जन्स, और फ्री वर्जन्स के ऊपर भी आपको क्या दे दी गई है, लिमिट, कि अब आप एक वीडियो को, जो फ्री वीडियो है, आप इसको 3 बार से ज्यादा प्ले नहीं कर सकते, राइट। एक्सपेंसेस राइजेस इवन व्हेन प्राइसेस अपीयर्स अनचेंज्ड, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं पर प्राइसेस क्या है, अनचेंज्ड है, राइट। व्हेन इनकम डज नॉट कीप अप, इनविजिबल आल्सो अफेक्ट्स द अर्निंग्स। इनविजिबल इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट कर रही है? पहले प्राइस को अफेक्ट कर रही, वेट को अफेक्ट किया, देन क्वालिटी को अफेक्ट किया, सर्विसेज को अफेक्ट किया, फीस को अफेक्ट किया, स्टूडेंट्स की लाइफ को अफेक्ट किया, अब अर्निंग्स को अफेक्ट कर रही है। कैसे? साइन क्या है? सेम सैलरी, हायर डेली एक्सपेंसेस हैं, रिड्यूस्ड बेनिफिट्स हैं। सैलरी वही है 20,000, बट डेली एक्सपेंसेस कितने हैं? पहले जहां पर खर्चा होता था 5,000 का, 7,000 का, 10,000 का, वहीं सबके अंदर 20% का क्या हो गया, राइज हो गया।
बट बेनिफिट्स क्या हैं? कम, राइट? बेनिफिट्स क्या हो रही है? कम हो रही है। रिजल्ट क्या है? लोअर परचेसिंग पावर, लोग कम खरीदना शुरू कर रहे हैं, राइट? जहां पर लोग महीने का 5 किलो का, फॉर एग्जाम्पल 5 kg शुगर परचेज करते थे, वहीं उन्होंने रिड्यूस कर दिया अप टू 3 kg टू कवर दैट गैप, राइट? मोर स्पेंडिंग फॉर सेम लाइफस्टाइल। अब विंटर्स हैं, ठीक है, 2025 विंटर्स। अब उसी को ही लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ज्यादा खर्च कर रहे हैं। कपड़े तो पहनेंगे ना, बेसिक नीड है, तो उसी के ऊपर ही ज्यादा खर्च कर रहे हैं। Here money loses strength without a visible pay cut, right? Why company use invisible inflation? किस लिए कंपनी किस लिए यूज करती है इनविजिबल इन्फ्लेशन? Why company here use invisible inflation? Customer resist price increase, ठीक है? Small changes attract less attention. Competition pressure prices. Reducing value is often easier than raising prices. Prices को बढ़ा दो, क्या आप प्रोडक्ट खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड कर दो, स्मॉल फीस ऐड कर दो, कन्वीनियंस चार्ज ऐड कर दो, हैंडलिंग फीस ऐड कर दो, प्लेटफॉर्म फीस ऐड कर दो, तो क्या पता चलेगा आपको? बर्डन लगेगा? नहीं लगेगा ना। और एकदम से प्राइस बढ़ा दो और उसके ऊपर फिर ये फीस बढ़ाओ, पता चलेगा, ठीक है? सो रिड्यूसिंग वैल्यू इज ऑफन इजियर दैन रेजिंग प्राइसेस। वैल्यू को कम कर दो, प्राइसेस को रहने दो, राइट? सो दिस इज हाउ द कंपनी यूजेस इनविजिबल इन्फ्लेशन। व्हाई इट इज हार्ड टू नोटिस? अब वही सेम बात आ गई, व्हाई इट इज हार्ड टू नोटिस? चेंजेस आर ग्रेजुअल, चेंजेस होते रहते हैं। ईच चेंज सीम्स माइनर। जैसे कि पहले 216 रुपीज का अगर आपने कोई किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर डाल रखा है एंड एट द टाइम ऑफ चेकआउट पहले 216 रुपीज का था, अब उसी के अंदर 14 रुपीज की एक हैंडलिंग फीस और डाल दी, तो नाउ द प्रोडक्ट कॉस्ट रुपीज 230। क्या आपको लगा? नहीं लगा ना। एट द टाइम ऑफ चेकआउट आपको नहीं लगा, आपको लगा अब मंगवाना तो है ही, 14 रुपीज और पे करके आपके पास सामान डिलीवर हो जाएगा। द कंज्यूमर फोकस ऑन प्राइस नॉट द वैल्यू। ओवर टाइम स्मॉल लॉसेस बिकम सिग्निफिकेंट। ये लॉस ही हो रहा है, स्मॉल स्मॉल लॉसेस, रोज 14 रुपीज का, 20 रुपीज का, फिर धीरे धीरे 100 200, ये आपकी अर्निंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। जहां पर आपकी सेविंग्स मंथली की ₹4000 हो जाती थी, वहां कट टू कट नाउ 2800 होने लग गई है। ये जो 1200 रुपये का आया, ये किस कैसे आया? रोज का कभी 100 रुपये लग रहे हैं, कभी 20 रुपये लग रहे हैं, कभी 14 रुपीज लग रहे हैं, कभी कितने लग रहे हैं, कभी कितने लग रहे हैं। सो दिस इज हार्ड टू नोटिस बट इट्स एक्चुअली अफेक्टिंग योर सेविंग्स। हाउ टू स्पॉट द इनविजिबल इन्फ्लेशन? कैसे? चेक द वेट एंड द क्वांटिटी। आप ना, आप देखना, आप कोई शैम्पू की बॉटल आपने परचेज कर रखी थी पहले 1 लीटर की फॉर ₹200। अब उसी 200 की बॉटल, प्राइसेस तो सेम है, बस वो बॉटल को ना आप स्टोर करके रखना जब वो खाली हो जाए। अब नई बॉटल जब आप परचेज करोगे ना, तो आप क्वांटिटी मैच करना, क्या वो 800 ml की है, क्या वो 900 ml की है। अब आपने देखा होगा, आप घी परचेज करते हो तो उसके अंदर 1 लीटर लिखा होता है, बट वहां पर 1 लीटर के साथ अप्रोक्सीमेशन में 900 ml भी लिखा होता है, चेक किया होगा। सो यू मस्ट चेक वेट एंड क्वांटिटी, दिस इज हाउ यू कैन स्पॉट द इनविजिबल इन्फ्लेशन। नाउ कंपेयर द यूनिट प्राइसेस, नोटिस क्वालिटी चेंजेस। पहले आपको घी की क्वालिटी के अंदर कुछ लगता था और अब आपको कुछ नोटिस हो रहा है। रिव्यू सब्सक्रिप्शंस, पहले 149 का सब्सक्रिप्शन आता था, अब 179 का सब्सक्रिप्शन हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम आपको पे करना है तो आप पे करोगे ही। काउंट एडेड फीस, जो अदर फीस, हैंडलिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस, सारी फीस है, उनको चेक करो। पहले प्रोडक्ट कितने का मिल रहा था, अब प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है। आप ना कभी देखना, अभी कईयों ने ना अपनी जीरो प्लेटफॉर्म फीस और वो सब कर रखी है, अब जब वो हटेगी, अभी आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जब वो हटेगी ना, जब वो दोबारा से लगाना शुरू करेंगे, उसके बाद उसका टोटल देखना, मैच करना, ओल्ड वर्सेस न्यू, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। और दिस इज हाउ यू कैन स्पॉट इनविजिबल इन्फ्लेशन, राइट? सो द की टेक अवेज आर, इनविजिबिलिटी इज नॉट अबाउट पेइंग मोर। जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन यही होता है कि आपने ज्यादा पे करना है हर चीज के लिए, ज्यादा नहीं। इट्स अबाउट रिसीविंग लेस। कई बार रिसीविंग लेस भी होता है, कई बार क्वालिटी कम मिल रही है,
कई बार क्वांटिटी कम मिल रही है, कई बार फीस लग रही है, कई बार प्राइस के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, कई बार वेट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, कई बार वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, कई बार सर्विसेज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। व्हेन वैल्यू फॉल साइलेंटली, मनी लूजेस पावर क्वाइटली। क्लियर हुआ? जो जो आज एक्सप्लेन हुआ वो सब क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ इनविजिबल इन्फ्लेशन एक्चुअली taking its root in our society. So it means money buy less than before. What actually been purchased for rupees 20, now आपको वो चीज कम मिल रही, you receive less, and that is quietly done. Same price, same brand, same shelf life, same packaging, but the experience is overall different, right?